कई बार कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अब 60s में आ गया, अब तो मेरे दांत जाने का टाइम आ गया। हमारे हार्ट, किडनीज, लंग्स कब तक चलने चाहिए? Of course, lifelong. So similarly, your teeth have to be there in your mouth till the last year. Meet Professor Dr. Manu Modi, a distinguished dental professional with advanced training in prosthodontics, a master's degree in dentistry, and a fellowship in dental implants. He leads 32 Facts Modi's Dental Center in New Delhi, which he runs with his wife, Dr. Mona. With over 25 years of experience, he is known for creating treatment experiences so comfortable that patients describe them as "Ye dil mange more" moments. Today, we'll talk to him about how dentistry is beyond just teeth. इंडिया में ऐसा सदियों से माना जाता है कि दांतों के लिए घरेलू नुस्खे जो हैं वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। कुछ देसी नुस्खे जैसे गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना एक सबसे अमेजिंग मेडिसिनल एंड अप्रूव्ड डेंटल एडवाइस है। बट एज यू सेड कोयला, देयर इज अ ब्रांड व्हिच आई वुड नॉट लाइक टू टॉक ऑन योर शो, बट ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो मेडिकली आप अपने दांतों की या डेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं? our mouth is the dirtiest part of our whole body if we compare the mouth and excretory system. How is dental health related to your general health? Let's say you have the problem pertaining to gums or you have bleeding gums. Bleeding gums होंगे तो आपके gums inflamed होंगे, gums swelled up होंगे, तो your bacterial count will increase to many times. So once that bacterial count goes high in the mouth, those bacteria they travel to your heart. Oh. And that is known as SABI. It is subacute bacterial endocarditis. That sounds very dangerous. So the people who have infected gums, they are always. ये जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं परफेक्ट दांत हैं किसी के और ये ट्रीटमेंट से ऐसा मैजिक हो गया, people are actually abusing this science as well. Absolutely. What do you have to say to such people? Asymmetry is the law of nature. जो भी चीज़ 100% सिमेट्रिकल होगी दैट विल लुक लाइक प्लास्टिक और आर्टिफिशियल। तो बहुत सारे यंग बच्चे दे कम टू मी कि डॉक्टर मोदी मेरे को परफेक्ट स्माइल चाहिए, एंड समटाइम आई फील दैट दे आर ऑलरेडी परफेक्ट। गट हेल्थ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग एट आवर टीथ? व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड नॉट इग्नोर अबाउट माय डेंटल हेल्थ? फर्स्ट इज Hi, Dr. Modi. हाय मैम। Extremely excited to have you on Candid Confessions. या I think हमारे जो दांत होते हैं बहुत important part है हमारी लाइफ का in multiple ways, and I think it's also one of the most neglected parts in our health today. Lot of reasons for that, and you're a dentist and you have years and years of experience. You told me 30 साल से आप इस प्रोफेशन में हैं। हालांकि मैं कहना चाहूँगी शुरुआत में ही कि आप बहुत यंग लग रहे हैं। But there are so many questions that I have in my mind and everybody thinks about when there is a tooth problem. So let's start with the very basic things. इंडिया में ऐसा सदियों से माना जाता है कि दांतों के लिए घरेलू नुस्खे जो हैं वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो नीम से दातुन करना चाहिए, नीम के पत्ते चबाने चाहिए, नमक से ब्रश करना चाहिए या कोयले से करना चाहिए। Please tell me how true or how untrue are these? Good morning, Chavi. It's in fact my pleasure to be a part of your show. As you rightly said, that dental care is one of the most important aspect in anyone's personality. But ironically, it is the most neglected. जी. Neglected इसलिए भी है because हमारी जो country है वहाँ पे health overall ही neglected है. Be it your general health, एंड हम उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको एसेट्स मानते हैं जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे लिए दे आर ऑफ नो वैल्यू। लाइक अगर आपने आजकल देखा होगा द गोल्ड इज गोइंग हाई और द प्रॉपर्टीज आर गोइंग हाई, बट आई ऑलवेज टॉक टू माई पेशेंट्स दैट यू डोंट स्पेंड ऑन योर सेल्फ, यू इन्वेस्ट इन योर बॉडी। जी. सो एज यू सेड कि जो देसी नुस्खे हैं टू सम एक्सटेंट दे आर फाइन। आई ऑलवेज से टू एनी वन अराउंड मी कि जो एक इंडियन किचन है वो एक हर इंडियन हाउस की एक फार्मेसी है। अच्छा. जो हमारी ग्रैंड मदर्स या मदर्स हमें सोर थ्रोट के टाइम पे हनी जिंजर देते थे, वो आज भी कंपनीज उनको इनकैश कर रही हैं, बट दे आर प्रिटी गुड। बट कमिंग टू द डेंटल केयर, एज यू सेड के मतलब कोई भी चीज़ कहीं से भी यूज़ कर लो, वो प्रॉबली इट डजंट होल्ड ट्रू।
बट कुछ देसी नुस्खे जैसे गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, वॉर्म सलाइन रिंसर्स, एक सबसे अमेजिंग मेडिसिनल एंड अप्रूव्ड डेंटल एडवाइस है, डेंटल केयर टिप है, जो हम भी अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप दिन में 2 बार गर्म पानी में नमक डाल के रिंस करोगे, सो प्रॉबली यू विल हैव अ बेटर डेंटल हेल्थ एंड अच्छा। आपकी गम्स की कंडीशन मच बेटर होगी. ओके सेकेंड टिप विच आई गिव टू माई पेशेंट्स एवरी डे, कि हमारी डाइट में एक बहुत मेजर चेंज आया है ओवर द ईयर्स, उसे मैं कहता हूँ एवोल्यूशनरी चेंजेस. अवर डाइट हैज़ बिकम सॉफ्ट. इफ़ यू सी दैट हमारे बच्चे सब ब्रेड्स खा रहे हैं, रिफाइंड ब्रेड्स, रिफाइंड कार्ब्स, बिस्किट्स. तो जो हमारी घर की डाइट थी उसके अंदर कार्ब्स रिफाइंड नहीं थे, कोर्स थे, जैसे घर की जो रोटी थी. जी. तो अगर आप अपने घर के खाने को स्टिक करोगे, आई टॉक टू माई पेशेंट्स कि अगर आप हर रोज़ एक एप्पल बगैर काटे बगैर छीले, 1 एप्पल एवरी डे विदाउट कटिंग विदाउट पीलिंग, अगर आप बाइट करके खाओगे तो आपको डेंटल प्रॉब्लम और गम्स की प्रॉब्लम फॉर योर लाइफ टाइम कभी भी नहीं होगी. Wow. So such a small thing which we have been taught from our childhood, बट हम वो ये छोटे छोटे एडवाइजेस भूल गए. बट क्यों ऐसा क्यों होता है एप्पल खाने से इस तरह से? अगर आप अपनी ग्रीन सैलड्स या एप्पल्स या कोई भी सीजनल फ्रूट लाइक गुआवा, मे बी पेयर, या जो भी सीजनल फ्रूट आपके टाउन में आपकी सिटी में अवेलेबल है, कोई एक्सपेंसिव फ्रूट्स पे मत जाओ, बट उनको पील नहीं करना. और आपको उसको एज अ होल फ्रूट खाना है. तो जब भी आप एक एप्पल को एज अ होल फ्रूट खाओगे, तो जो आप एप्पल को बाइट करते हो तो उससे आपके टीथ बिकम स्ट्रॉन्ग. सेकेंड, गम्स में फ्राइबिलिटी, गम्स वीक होते हैं बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट डाइट. जितने भी कार्ब्स हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि जी मेरा बेटा 2 बार ब्रश करता है या मेरी वाइफ 2 बार ब्रश करती है, 5 मिनट्स ब्रश करती है, फिर भी उसको डेंटल प्रॉब्लम क्यों है? 5 मिनट्स ब्रश करना किसी डेंटिस्ट ने ऑन द अर्थ एडवाइज नहीं किया. इफ़ यू आर ब्रशिंग वंस अ डे इट इज़ गुड, बट इफ़ यू आर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इट इज़ एक्सेलेंट. बट आपको ये देखना है कि अपने डाइट में क्या इंक्लूड किया. सो प्रॉबली द ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल्स, गुआवा, अगर आपने इनको बगैर काट के विदाउट पीलिंग विदाउट एज अ होल फ्रूट खाया, तो आपके टीथ ठीक रहेंगे, गम्स ठीक रहेंगे, गम्स में से कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगी, कैविटीज़ का रेट कम होगा, and you will be a healthier and a younger individual for your life. Okay. So this is always my advice. Is it also to do with जब आप बाइट कर रहे हैं तो you're exercising your gums as well? Is it Definitely, kind definitely. of like an exercise? Because जो for the एप्पल gums? की स्किन है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एप्पल था. Okay. बट जो लोग एप्पल को या किसी भी फ्रूट को जूस फॉर्म में लेते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है. ऐसा क्यों? बिकॉज आपने एक तो फाइबर कंटेंट सारा का सारा यू हैव लेट इट गो डाउन द ड्रेन. सेकेंड, आपने एम्प्टी कैलोरीज ली. आपने अगर एक ग्लास जूस पिया किसी भी फ्रूट का, तो प्रॉबली यू हैव कंज्यूम्ड अराउंड 200 to 300 कैलोरीज. सो दैट इज इक्वलेंट टू 1 मील. एंड अगर आपने एक एप्पल खाया तो दैट इज अराउंड 40 कैलोरीज. Oh. 1. सेकेंड, आपने जब एक ग्लास पूरा जूस लिया तो या तो आप उसको एज अ मील रिप्लेसमेंट लो, बट अगर आपने पूरा जूस पिया तो यू हैव सम शुगर्स, दो दे आर नेचुरल शुगर्स, सो दे आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी. Okay. सो अगर एज अ हेल्थ इंडिविजुअल, इफ आई एडवाइस टू एनीवन, don't take those juices, whether it is a fresh juice of your house or those canned juices. So have a fresh fruit. और नमक और कोयला? Namak in the form of warm water and salt is amazingly good. But as you said, koila, there are some companies in India which are non-branded, जो कि local companies हैं. Ironically, वो उसमें कोल भी डालते हैं और उसमें वो टोबैको भी डालते हैं. अच्छा. There is a brand which I would not like to talk on your show, but third biggest reason of oral cancer is these abrasives. If you Oh. use koila or if your paste or your powder has some tobacco, so probably they will cause localized irritations, inflammation around the gums, and we see every day some or another case where precancerous lesions have formed. Ironically, the patient is addicted to that paste or that powder and वो उसे छोड़ नहीं पाएगा, and knowingly or unknowingly the patient develops a full-fledged oral cancer which is very hard to treat, and probably you ruin your life, you ruin your family,
and you are completely lost. And you don't even know that this is being caused by some wrong product that you're using. Absolutely. ओके सो मुझे ये बताइए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इनटू द कॉन्वर्सेशन कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो मेडिकली आप अपने दांतों की या डेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं. डेंटल हेल्थ के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस रादर आई विल से इज you should visit your dentist probably yearly twice. अच्छा, एंड ये आपको कौन सी एज से शुरू कर देना चाहिए डेंटल विजिट्स? Probably I'll say जो एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी में सबसे ज़्यादा हम चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं. से सपोज आज एक बच्चा पैदा हुआ जो 1 day ओल्ड है, जी, उसको हमने day 1 पे बात दिया, तो day 1 से उसको ओरल केयर की भी ज़रूरत है. ओके. तो Day- हमारा ये बिलीफ होता है कि दांत तो अभी आए ही नहीं है. डे 1 से आप बच्चे को फीड कर रहे हो, बीट ऑन मदर फीड. 8-9 मंथ्स के बाद बच्चे को वीनिंग फेज शुरू होता है, जहाँ पे मदर फीड के अलावा उसको ऊपर के सॉलिड्स या और प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं. तो बच्चे की ओरल केयर डे 1 से एज अ मदर, एज अ इंडिविजुअल और एज अ फैमिली वी शुड टेक केयर. उसकी केयर ऐसे में कैसे करनी है? वी शुड हैव सम स्मॉल कॉटन हैंकीज, उनको हम हल्का सा गर्म पानी में डिप करें और उसके गम पैड्स को डे 1 से क्लीन करें, ओह, एटलीस्ट दिन में एक बार. ओके. सेकेंड केयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज 6 months का जब बच्चा होता है तो 6 months की एज में फर्स्ट टूथ इरप्ट करता है, एंड व्हेन मदर इज फीडिंग द चाइल्ड हैज अ टेंडेंसी टू स्लीप. बच्चा सोते सोते मदर फीड लेते हुए सो जाता है, तो वो जो मदर फीड पूलिन इकट्ठी होती है बच्चे के मुंह में, सो दैट कॉजेज रैम्पेंट केरीज और नर्सिंग बॉटल केरीज. ओके. So that is the second biggest problem which I face and encounter every day. कि आपका बच्चे के मुंह में 6 महीने की एज में 2 दांत आए या 3 दांत आए और आपने केयर तो की नहीं, बिकॉज आपको लगा कि मैं ब्रश कैसे करूं. आप ब्रश नहीं भी कर पा रहे तो देन देयर आर स्मॉल फिंगर ब्रशेस जो आपने लगाया, दे आर वेरी सॉफ्ट, एंड उन टीथ के अराउंड उसको क्लीन करो. मे बी यू डोंट यूज अ पेस्ट बट यू हैव टू क्लीन दोज टाइनी टीथ बिकॉज दे आर प्रीशियस फॉर दैट किड, बिकॉज वो टीथ रहेंगे बच्चे के मुंह में टिल द एज ऑफ 12. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट केयर इज आफ्टर द एज ऑफ 9 months. ओके. बिकॉज 9 months के बाद बच्चे के मुंह में, बच्चे की फीड में मदर फीड के अलावा आप अदर थिंग्स यू आर गिविंग. सो उस समय आपको फुल फ्लेजेड स्मॉल सॉफ्ट ब्रशेस से बच्चे की ब्रशिंग करनी चाहिए. ओके. And fourth, I would like to say, because there is a very wrong thought and between the medical fraternity itself, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज बच्चे को इनफाइनाइटली मदर फीड देते हैं, हाँ, या दैट्स करेक्ट. विच इज़ अ रॉन्ग थॉट. उन्हें लगता है कि मदर फीड, जैसे हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि मदर फीड इज़ गुड फॉर एनी किड, बट मदर फीड तभी तक ज़रूरी है जब तक बच्चा ऊपर से कुछ नहीं ले रहा. सो 9 months के बाद जैसे ही वीनिंग फेज शुरू होता है तो अगले 3 से 4 महीने में मदर फीड को बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए. ओके. बिकॉज 13-14 months के बाद जो मदर फीड बच्चे के लिए ब्लेसिंग थी, वो बच्चे की हेल्थ, डेंटल हेल्थ एंड जनरल हेल्थ दोनों में हार्मफुल हो सकती है. एंड नेक्स्ट थिंग इज बॉटल फीड शुड बी अ बिग नो फॉर एनी किड, बिकॉज बॉटल से ज़्यादा हार्मफुल कोई भी चीज़ नहीं है. एंड दिस इज फॉर द डेंटल हेल्थ और फॉर द डेंटल एंड फॉर द जनरल हेल्थ. ओके. बिकॉज बॉटल्स आर अनक्लीन. अगर आपने उनको क्लीन भी किया तो बच्चा एडिक्टेड हो जाता है उन बॉटल से. तो बॉटल की जगह कभी भी अगर आपने उनको, बच्चे को ऊपर से मिल्क देना है या कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स देने हैं, तो गिव इट विद अ स्पून एंड विद अ कटोरी, एंड दैट इज़ द सेफेस्ट एंड द क्लीनेस्ट वे टू फीड योर चाइल्ड. ओके. ऑल्सो टेल मी, वो बॉटल फीडिंग की वजह से कहते हैं कि आपका जो डेंचर है, जो कम्स है, वो सारे मिस शेप हो जाते हैं, यू गेट बक टीथ. It is not because of the bottles. Okay. It is basically because of the thumb sucking. ओह. बॉटल की वजह से जो वो टीथ होंगे वो उनमें केरीज आएगी, कैविटीज आएंगी. Okay. And these cavities are known as wildfire cavities. They spread like a wild forest fire. अगर आज आपको 2 दांतों में कैविटीज दिख रही हैं, अगले 2 महीने में आपको लगेगा वर्चुअली 10 दांतों में कैविटीज हो गई, एंड यू विल लेबल योर चाइल्ड एज अ चाइल्ड विथ सम डेफिशिएंसीज.
हम खुद ही अपने बच्चे को बोल देते हैं कि भाई इसको कोई डेफिशिएंसीज है, उसकी वजह से उसके मल्टीपल टीथ डैमेज हो रहे हैं. नो, योर चाइल्ड इज़ हेल्दी, बट नोइंगली अननोइंगली आप उसकी केयर नहीं कर रहे. और इन बच्चों में हु आर 18, 19, 20 मंथ्स ओल्ड, तब हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है उनको ट्रीटमेंट देने में. बिकॉज इन बच्चों में फुल फ्लेजेड हमें पल्पेक्टमीज, जो बड़ों में रूट कैनाल कहते हैं, वो करने पड़ते हैं. Wow. कई बार बच्चों में हमें क्राउन्स देने पड़ते हैं, स्पेस मेंटेनर्स देने पड़ते हैं. बट जो क्रुकेट टीथ होते हैं, जो मैल फॉर्म्ड या मैल अलाइन टीथ होते हैं, वो होते हैं बिकॉज ऑफ द हैबिट्स ऑफ थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, लिप बाइटिंग. इन सब की वजह से टीथ कैन गेट ऑल्टर्ड इन देयर शेप और पोजिशंस. तो ये जब टीथ ऑल्टरेशन जब होने लगती है, एट व्हाट एज फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ बेबी, शुड पेरेंट्स फील कि नहीं अभी इसको किसी डेंटिस्ट के पास या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाकर चेक करा लेना चाहिए, सो दैट दिस डजंट गेट एनी वर्स? जो ऑर्थोडोंटिक्स की आपने बात करी, ऑर्थोडोंटिक्स के दो बेसिकली रादर 3 फेजेस हैं. वन इज प्रिवेंटिव, सेकेंड इज इंटरसेप्टिव एंड थर्ड इज करेक्टिव. प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स हम शुरू कर सकते हैं रफली 4-5 ईयर्स की एज से. ओके. 4-5 ईयर्स मतलब अगर बच्चे को थंब सकिंग है, नेल बाइटिंग है, लिप बाइटिंग है, तो उन केसेस में हम बच्चों को एंटी थंब सकिंग या हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस देते हैं. ओके. जो कि जिसकी वजह से बच्चे की एनामलीज की सिवियरिटी बढ़ेगी नहीं. सो दैट इज प्रिवेंटिव. सेकेंड इज तो ये इंटरसेप्टिव. किस तरह के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ? ये अप्लायंसेस बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. वन इज प्री फॉर्म्ड, ओके. एक आते प्री फॉर्म्ड. अगर एक बच्चा है जो सपोज ही इज इन अ हैबिट ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम माउथ, तो देयर आर अप्लायंसेस जिससे माउथ ब्रीदिंग की बजाय बच्चा अपना नेजल ब्रीदिंग शुरू करता है. Okay. सो वन इज प्री फॉर्म्ड अप्लायंसेस. सेकेंड इज वी टेक सम साइजेस के लिए भी आजकल बहुत कुछ आसान हो गया बिकॉज वी हैव 3D स्कैनर्स. तो बच्चे में भी हम स्कैन कर सकते हैं और वी टेक सम साइजेस एंड बच्चे के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड अप्लायंस बन के आती है, जो कि बच्चे को 3 to 5 months लगानी है, एंड दोज हैबिट्स आर वर्चुअली गॉन. ओके. सो दैट इज़ द फर्स्ट. सेकेंड इज इंटरसेप्टिव. इंटरसेप्टिव होता है कि अगर एक बच्चे की सिवियरिटी ऑफ मैल अलाइनमेंट बढ़ रही है, कई मिल टीथ बिफोर टाइम नहीं निकल रहे, तो वहाँ पे आप हर 3 to 4 months में 7 to 10 years की एज में यू विजिट योर डेंटिस्ट. से सपोज कोई ऐसे दूध के दांत हैं जो नहीं निकल पा रहे, तो दे आर टेकन ऑफ सो दैट द नेक्स्ट टीथ शुड टेक देयर प्लेस. सो दैट इज इंटरसेप्टिव. टेकन ऑफ मतलब जो निकल नहीं पा रहे हैं, कैसे? जैसे हमारी डाइट सॉफ्ट हो गई, तो इट इज़ अ वेरी कॉमन अकरेंस कि बच्चों में जो दूध के दांत हैं विच शुड ऑटोमेटिकली फेल ऑफ, वो नहीं निकलते. अच्छा. So there is one place and there are 2 teeth. One is milk tooth and second is a permanent tooth. So it is in these protocols, the milk tooth is taken off ओके. and the permanent tooth automatically takes its own place. राइट. So severity of malocclusion is decreased. And third is correction. So actual correction starts from the age of 11. उससे पहले नहीं. Normally is 11. एंड दैट्स बिकॉज मिल्क टीथ हैव नॉट फॉलन ऑफ. हाँ, because 11-12 में permanent teeth आ जाते हैं. ओके. तो उसके बाद भी हमारे को 1.5 से 2 साल का ट्रीटमेंट होता है. तो अगर 11 साल से पहले शुरू करोगे तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. तो Yes. दिस आजकल तो ब्रेसेस होते हैं और अलाइनर्स भी होते हैं. एब्सोल्युटली. तो कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए बेस्ट है? इज इट कि किसी के लिए ब्रेसेस बेटर है, किसी के लिए अलाइनर्स बेटर है, या कोई कुछ भी चूज कर सकता है एज पर देयर चॉइस? एज यू सेड कि हम कोई भी कुछ चूज़ कर सकता है. ये हमारी कंट्री है जहाँ पे हमें प्रिविलेज है कि हम जाके चूज़ करते हैं. ओके. बट इट इज़ द अदर वे राउंड. योर डॉक्टर हैज़ टू एडवाइज यू what is good for you. अच्छा. Right. Ideally, if you take my advice, braces is the sure shot, tested, tried treatment for kids. Especially जो बच्चे 12, 13, 14 साल के, वहाँ पे पेशेंट कंप्लायंस, बिकॉज अगर आप अलाइनर्स बनवाओगे, 1 aligners are expensive. सेकेंड, अलाइनर्स में पेशेंट कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है. पेशेंट कंप्लायंस मतलब अगर बच्चे ने या इंडिविजुअल ने अलाइनर नहीं लगाया तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे. सो बच्चों में हम दैट पेशेंट कंप्लायंस एक्सपेक्ट नहीं करते. थर्ड, किड्स आर अ लिटिल, दे हैव अ लाइक कैजुअल काइंड ऑफ एटीट्यूड. अगर उन्होंने एक अलाइनर ब्रेक कर दिया तो अलाइनर कंपनी से डेंटिस्ट विल ऑर्डर अ न्यू अलाइनर, सो दैट विल फर्दर एड टू द कॉस्ट एज वेल एज इट विल डिले द ट्रीटमेंट. So in
these kind of cases what I have seen is कई families, कई बच्चे ओवर zealous होते हैं because नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. So they come and they are after our life कि डॉक्टर मोदी हमें अलाइनर्स ही लगवाने हैं. 2 साल का अगर हमने उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाया, ट्रीटमेंट सिमुलेशन डे 1 पे हो जाता है, बट बच्चों ने वो अलाइनर्स उस स्टिपुलेटेड टाइम के लिए नहीं लगाए, तो एंड रिजल्ट्स नहीं आते. सो द फैमिली एंड अप स्पेंडिंग डबल एंड family is not really very comfortable with the end results because expected results ही नहीं आएंगे उन cases में. But I remember me as a child, I think dentist के साथ मेरा काफ़ी close रिश्ता रहा है शुरुआत से because I had buck teeth. Okay. And I don't think I used to never suck my thumb और क्यों हुए मुझे वो नहीं पता because these problems were not there with me. But still, I was a very severe case. एंड मेरे डैड के साथ मेरी ऑफन बात होती रहती थी टिल आई बिकेम 12 कि करा दो पापा करा दो बट आई डिड नॉट नो एट दैट एज कि भाई इसके लिए एक एज रिक्वायरमेंट होती है एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है मेरा ट्रीटमेंट. देन फाइनली आई गॉट माई ब्रेसेस. Now I have $1 million smile thanks to that. But I remember that braces were very painful and they were very uncomfortable. और मुझे that metallic feel inside my mouth used to really get uncomfortable, or food would get stuck, and as a school going child I would feel embarrassed to smile, so I would always cover my mouth while smiling. Plus lips अंदर से ना कट जाते थे कई बार जब डेंटिस्ट टाइट करता था उनको, तो कई दिन तक पेन भी रहता था. Right. So considering all these things, I want to know कि इतने साल के बाद, I think it's been 30 years since my treatment or maybe more, आज ब्रेसेस कैसे होते हैं? Is it still true for braces or is it that aligners हैं तो क्यों नहीं? The things have completely changed. Currently, the technology of the braces, what is available internationally, and what we even practice in our practice, they are known as self-ligating systems. Self-ligating, and that too transparent. So transparency suffice the cosmetics because वो braces visible नहीं होते. Oh really? Okay. Second is self-ligating is those braces जहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर एक छोटा सा एक स्लॉट है, एक छोटा सा लेड है, तो उस लेड को वी ओपन एंड वी स्लाइड द वायर इनटू इट एंड देन दैट लेड इज क्लोज्ड. एंड दीज ब्रेसेस आर इवन नोन एज फ्रिक्शनलेस सिस्टम्स. Okay. सो फ्रिक्शनलेस एंड सेल्फ लाइगेटिंग की वजह से नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स की कम ज़रूरत है. Okay. 1. सेकेंड, इसमें वायर्स टाइटनिंग की नीड वर्चुअली बहुत हद तक कम हो गई है. Okay. So you must have experienced the pain whenever the wires were tightened, because जब भी वायर टाइटन होगी तो amount of forces transmitted on the teeth were tremendous. Yeah. Third, they are very well finished and very well polished. तो जो हमारे lips या cheeks वहाँ पे जाके stuck करते थे, food getting stuck, वो वाली problems भी virtually sort out हो गई. Oh, amazing. So the things have completely changed. But अगर कई ऐसे individuals हैं या aligners, as I said, is basically meant for those people like you. Say suppose आपको अब ज़रूरत है, Got it. right? And you are into that profession where you cannot afford to have those braces. So there, the aligners is meant for the working individuals, right? And the best part in our country is they are still damn cheap. World over, braces या aligners लोग तब लगवाते हैं, not as a kid, when they are 21 plus. अगर आप कभी भी किसी भी कंट्री में ट्रैवल करोगे तो इमिग्रेशन ऑफिशियल सब आपको अलाइनर्स या ब्रेसेस लगाए हुए मिलेंगे. वाई? बिकॉज वहाँ पे ये लिबर्टी नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ गए और आपने ब्रेसेस लगवा लिए. वहाँ पे दे स्टार्ट गेटिंग दीज ट्रीटमेंट्स डन व्हेन दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. Okay. Right. Okay. So I want to also ask you that जैसे let's say आप बोल रहे हैं कि aligners के ये सारे problems हो सकते हैं, especially with kids. My daughter is also getting her dental treatment done. Right. She was a thumb sucker. तो अभी 12 साल की उम्र में हमने उसे aligners लेके दिए. She's very particular about wearing them and she's very religious with the maintaining कि कब मुझे set change करना है और कैसे उसको हर मील के बाद पहनना है, and not more than a couple of hours in a day does she ever take them off. Do you think if a person is able to do this kind of, maintain this kind of routine, aligners could probably be better? Definitely, as you said that your daughter is very religious in wearing and following all those instructions, aligner is definitely a very, very beautiful choice. In fact, just to tell you over here, we had a special child.
She has been coming to me from the age of 4. So by the we have just finished with her aligners. Her teeth were mottled. Mottled was like her teeth are very very soft in nature, Oh, and that was some because of some genetic deformities. So in these cases, braces cannot be done. correct. Right. So where the kid is mature, the family is supportive. So probably a aligner is definitely the first choice. ओके ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द डेली डूज एंड डोंट्स, जैसे आपने बच्चों की तो बात की कि छोटे बेबीज़ जो होते हैं उनके लिए हमें ये करना चाहिए, यूज़ अ फिंगर ब्रश एंड यूज़ अ क्लॉथ, डैम्प क्लॉथ टू क्लीन द माउथ. ऐसे बड़े लोगों को क्या करना, हमारी उम्र में लोगों को क्या करना चाहिए डेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए? First thing I'll say is visit your dentist 6 monthly once. Whether you yourself feel that you need a cleaning or not, go and get a session of cleaning, fluoride, air polishes. In fact, we have now a system which is known as GBT, which is a special air polishing systems. So जितने भी आपके टीथ के ऊपर पिछले 6 महीने में irregularities हैं वो सब will be well taken care by your dentist. So 6 months के बाद एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना first and foremost important aspect है. तो ये 6 मंथली क्लीनिंग करानी चाहिए? Mandatory. Whoa, okay. Mandatory. As we go to salons, we get our cars cleaned, we clean our houses. To update you, our mouth is the dirtiest part of our whole body. If we compare the mouth and excretory system, the bacteria in the mouth are always many times more as compared to the other things. What are you saying? So because what we do is we eat every, say suppose especially in North India, what I've seen is we eat a lot. अभी हमने चाय पी ली, कभी हमने कुछ खाया, कभी कुछ खाया, अभी हमने एक बिस्किट खा लिया. So whatever we are eating, whatever we are drinking is leaving residues in your mouth. They are getting deposited in and around your teeth. So एक point के बाद these deposits are known as plaque. Fourth layer of plaque getting mineralized is calculus. Calculus is stones. So once these stones are formed in your mouth, so you cannot take them off yourself. So first is visit your doctor, get a checkup done, get your cleaning done. Okay. Second thing which I advise to all my patients, as you have even undergone the treatment for braces, at least 2 to 3 years में एक full mouth X-ray that is known as OPG, orthopantogram, वो आपको प्रॉब्लम है नहीं है. Whenever you are visiting your dentist, after 2 years, 2 साल में एक बार एक simple X-ray करवाना mandatory है. Okay. Because when we are examining you clinically, बहुत सारी findings कई बार हमसे भी miss हो सकती है. So that orthopantogram will tell everything that what is your dental condition radiographically. So if anything is needed, your dentist will advise you and will give you that intervention. Because I always believe prevention is better than cure. Of course. Prevention is better than cure. It is cheaper, timely, and these teeth are meant for a lifetime. कई बार कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अब 60s में आ गया, अब तो मेरे दांत जाने का वैसे ही टाइम टूटने, अभी क्या फ़ायदा कुछ करके. करेक्ट. हमारे हार्ट, किडनीज, लंग्स कब तक चलने चाहिए? Of course, lifelong. Lifetime. So similarly, your teeth have to be there in your mouth till the last day of the life. Right? So इनको अगर आप maintain करके रखोगे, your lifespan will increase. Oh. Right. We have a quote in our clinic, age is just a number. Don't consider your life to be over till it is finally over. And it is important to preserve what already exists than to replace what is missing. Wow. लोग आकर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं. एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट आप करवाना क्यों चाहते हो? अगर सिंपल स्मॉल डे टू डे केयर से आप उनको मेंटेन करते हो तो यू विल बी एबल टू मेंटेन देम फॉर योर लाइफ. एज आई जस्ट सेड यू, वी हैव अ लिविंग पेशेंट, आवर ओल्डेस्ट लिविंग पेशेंट, एज पर द रिकॉर्ड ही इज 110. What? And he is a guy from Ludhiana, and he has taken treatment from us almost 20 years back. Knowingly, unknowingly, around a month back, his daughter has come to me for his treatment, and during conversation, she said कि my father was remembering you, and he is always blessing you कि उनकी वजह से मेरा लाइफ स्पैन इंक्रीज हुआ है.
सो आई हैव Amazing. सीन एन नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है अगर आपकी डेंटल केयर ठीक है. तो ये तो आप मुझे बताइए अभी कि डेंटल केयर और लाइफ स्पैन की आप बात कर रहे हैं. प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज द कोरिलेशन, हाउ इज डेंटल हेल्थ रिलेटेड टू योर जनरल हेल्थ. डेंटल हेल्थ और जनरल हेल्थ के बीच में डायरेक्ट को रिलेशन है. इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, dental care has a direct impact on any and every organ of the body and the lifespan. Really? Okay. First, if we talk about अगर आपके teeth ठीक हैं, if your teeth are in a good shape, or if you have, let's say you have the problem pertaining to gums, or you have bleeding gums. Bleeding gums होंगे तो आपके gums inflamed होंगे, gums swelled up होंगे, तो आपके मुंह में बैक्टीरियल काउंट जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे माउथ का हिस्सा है, तो योर बैक्टीरियल काउंट विल इंक्रीज टू मैनी 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 टाइम्स. सो वंस दैट बैक्टीरियल काउंट गोज हाई इन द माउथ, दोज बैक्टीरिया दे ट्रैवल टू योर हार्ट. Oh, And that is known as SABE. It is subacute bacterial endocarditis. that sounds very So dangerous. the people who have infected gums, they are always prone to cardiac problems. They are prone to diabetes or uncontrolled diabetes is always there. Third, if you have multiple teeth which are missing, you will not be able to chew your food properly. You will be virtually gulping your food. Say, suppose you are making a juice in a juicer where there are no blades in that juicer. Whether you will be able to blend your juice? No, correct. Right. So similarly, if your crushers or if your molars or if your teeth are not there, you will be basically taking the food, gulping your food. So once you gulp your food, you will be able to suffice your hunger, but आपकी बॉडी को जो नरिशमेंट और न्यूट्रिशन चाहिए, And the digestion also will become difficult. डाइजेशन तो है ही, बट उससे ज़्यादा नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी. सो जब भी नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, यू विल ऑलवेज फील वीक एंड लेथार्जिक. So is it that ये जो माउथ में आप सिम्टम्स देख रहे हैं, these tell you about what disease may or may not happen, or is it the other way around? कि It ये is both disease the है ways इसलिए round. okay. Both the ways round. So whenever any new patient comes to us, he or she is coming to us for the first time, we take a detailed medical history. Say suppose हमें लग रहा है कि patient diabetic है. Patient is saying कि Dr. Modi, I am uncontrolled diabetic, even in spite of being taking the right medications, insulin, everything. बट अगर वहाँ पे पेशेंट का डेंटल केयर निगलेक्टेड है, तो डेंटल निगलेक्टेड हाइजीन विल बी द एडिटिव फैक्टर टू द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. वन, अब अगर हमने से सपोज अ पर्सन इज कंप्लीटली हेल्दी, ही और शी सेज कि मेरे को कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, एंड यू आर टेकिंग द रेडियोग्राफ ऑफ द पेशेंट. फर्स्ट रेडियोग्राफ में अगर से सपोज हमने एक ओपीजी किया, तो हमारे रेडियोग्राफ्स के कुछ सेट पैरामीटर्स हैं जिस पे हम रेडियोग्राफ्स एक्सपोज करते हैं. Okay. If the radiograph comes a little too dark, so there is a chance that the patient might, I'm saying there is a chance that the patient might be osteoporotic. Oh. So in cases में we have been getting routinely densitometry done, that the bone density. Okay. And I have seen that 80% cases where we predicted that it could have been there, we were right. Wow. And to add one thing another to it, there is another problem which is pertaining to dentistry, that is sleep apnea. Since we are talking about this, so we should discuss about that as well. Sleep apnea, you are aware, ma'am? Yes, sleep apnea is when you can't breathe in your sleep, right? To some extent, you are absolutely right. Sleep apnea is cessation of breathing while sleep. Cessation is stopping of breathing while sleeping. So it's an involuntary act. Correct. कि हम सो रहे हैं और सोते सोते हमने कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेना बंद कर दिया. इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ लेटली कि आप अपने एक एक्स फ्रेंड से या एक्स फैमिली मेम्बर हु वाज इन 40s and 50s, पिछले महीने मिले, ही और शी वाज हेल एंड हार्टी, एंड वन फाइन डे यू गॉट द न्यूज़ कि वो सोते सोते दैट पर्सन डाइड ऑफ. Oh, you can actually die of sleep apnea? I thought it is maybe something No. which is very It is scary, fatal, ma'am. but you eventually it is wake fatal. up. It is fatal. Oh my God, okay. So you might have heard about these instances. Yes.
So sleep apnea has been found to be one of the very important reasons. So what happens is, when a person comes to us, during the detailed history or detailed examination, there are some cardinal signs of sleep apnea, that the patient will always giving a feeling of fatigue. The patient will be frowning quite often. Patient will complain of कि मैं कहीं भी बैठता हूँ मैं डोज ऑफ कर जाता हूँ. Okay. फोर्थ इज कि सुबह उठने के बाद भी अक्सर मुझे फीलिंग होती है कि आई एम टायर्ड एंड आई वांट टू स्लीप मोर. राइट. पेशेंट इज lethargic. Patient is short tempered, often reacts, and weakness at all the times. So these are few signs of sleep apnea. तो ये मतलब ये सारे साइंस कैन ऑल्सो पॉइंट टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बट स्लीप एपनिया पे डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो ये आप एग्जैक्टली कैसे डायग्नोज करते हो कि ये साइंस जो है ये स्लीप एपनिया के साइंस हैं? अब यहाँ पे एज अ डेंटिस्ट जब आप, बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग ओनली द डेंटल पार्ट, you are treating a complete patient. You are completing his, you are there as a well-being expert for any patient. So जब भी आप एक patient को facial examination करते हो, we have extraoral examination. We examine the face of the patient, the muscles, then we have a temporomandibular joint. So we examine every aspect. So जब भी ये 5-6 findings अगर patient में आ रही हैं and the patient is snoring at night, patient से हम पूछते हैं या उसकी wife से या partner से कि does he or she snores at night, and if all these out of 7-8 signs, if 5 or 6 are in yes, then we refer them to a physician. ओके. And if the physician even feels that the sleep study is needed, the sleep study takes around 3 to 4 hours. That can be done in the comfort of your home, or nowadays all of us have mediclaims. You can go to any hospital, get yourself admitted, and 3 to 4 hours or 5 hours you will get a sleep study done, and next day you will get the reports. ओके. That how your ECG patterns were there, how your heart rate was there, how was your respiratory rate, and the physician will be concluding that the patient has sleep apnea. ओके. So if the patient has sleep apnea, then we do have the devices which we can deliver from the clinic. Besides this, the patient has to undergo the medical treatment by the physician, and that the patient has to wear those CPAP devices at night. And you mark my words that within couple of days, patients come back to us and they says, "Okay, Dr. Modi, I have regained my lost energy." And then we feel that pleasure, and we again get a call from those physicians, "Okay, doctor, how you diagnosed that this patient is having sleep apnea?" So the timely interventions is something very important. And the best part, Chavi, in India, the doctors are very easily available या and एब्सोल्युटली. very economically available. अभी भी एक डेंटल एडवाइस या एक मेडिकल एडवाइस की क्या कॉस्ट है? कुछ भी नहीं है. या आई नो यूएस वगैरह में जाओ तो अपॉइंटमेंट मिलने में ही 1-1.5 महीना लग यूएस क्या जाता है. मतलब, कोई भी कंट्री आप यू स्टेप आउट ऑफ इंडिया, यू विल नॉट फाइंड अ गुड डॉक्टर, और ईदर द डॉक्टर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. सो हम knowingly or unknowingly we blame our Indian doctors as expensive. But I often say कि probably a doctor, how much a doctor will charge you? Nothing. No, I My father had been in judiciary. We have a lot of judicial officers in our house. So I have seen his consultation. So probably nothing. So then why the society doesn't take the services? So tell me, as a dentist, when you tell somebody जो आपको लिटरली अपना सिर्फ दांत चेक कराने आया या दांत का दर्द चेक कराने आया, आप उनको बोल रहे हैं कि आपको शायद डायबिटीज़ हो सकता है, आपको शायद हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, डू यू एवर फील लाइक व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट यू गेट फ्रॉम पेशेंट्स व्हेन यू टेल देम दिस? 80% or 90% people are always very appreciative. They appreciate. 10% people have that chalta firta attitude. उनको आप कितना भी गाइड कर दोगे, they don't have time for themselves, and they take any medical advice very casually. But the society is changing, and I'll say 90% people take it very seriously and they religiously follow.
And that is the reason the lifespan of any human being has increased. So the main credit goes to the medical sciences. Absolutely. Yeah. So तो ये बताइए, since dentistry is now, I mean, there's this is a whole new thing that I'm hearing about dentistry. मेरे लिए तो सिर्फ cavities fill करना या braces लगवाना was a dentist job, or whitening and cleaning. अगर ये इतना important है, तो फिर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो वाइटनिंग हो गया या क्लीनिंग हो गया, व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? आई मीन, यू आर सेइंग दैट इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव इन इंडिया. कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है. बट मैंने एक बार जाके वाइटनिंग कराई थी, मेरा 28,000 का बिल था. सो ये भी मैंने देखा है दैट इट डिपेंड्स फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, इट डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम सिटी टू सिटी, इट डिपेंड्स फ्रॉम मशीन टू मशीन. तो एज एन इंडिविजुअल हु इज लुकिंग टू गेट द प्रॉपर केयर फॉर हर सेल्फ, हाउ डू आई डिसाइड कि भाई ये डॉक्टर मेरे लिए ठीक है, ये अफोर्डेबल भी है, लेकिन दैट डजंट मीन दैट आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग एंड दिस पर्सन इज माई गो टू पर्सन? कैसे डिसाइड किया जाए? I probably feel that they have charged less from you. So They should have added one more zero to you. Oh my god. That's it. Am I Then right or wrong? I don't want a long lifespan then. So, like, the thing is, I again say medical treatments in this country are damn cheap. We have a family of 200 doctors in our house, and we often talk that things are damn cheap. So, if you say that, say suppose let's say कि in your case you spend 28,000. So, जो आपको सबसे पहले जो भी डेंटिस्ट को आप चूज कर रहे हो, आपको उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए. Okay. The person or the doctor should be very well qualified. Second is the years of experience. Third is whatever treatment you are opting for, what is that brand of treatment? Okay. You said that you got a whitening done. So the person who is such learned like you should have said which whitening you got it done. Okay. So the top-notch whitening systems in the world are expensive. But again, I'll say they're damn cheap in this country. But is it like, does it really make a difference on what It brand do you're make a using? difference. It do make a difference. Because I have got whitening done for 3,500 also. No, the top-notch systems in the world is Zoom whitening. Okay. I'll be not hesitant in not mentioning the Fair, brand. why not? So we do have Zoom whitening, and now let's say that we are the only one. There are many people in the world and many people in this country who use Zoom whitening. Zoom whitening is an American system, which is done with some special lights, which come from Zoom, then the special material, which is again from Zoom. So these are those materials which are safe for you, right? So if we see that if you are spending, say suppose you are spending 100 rupees on your treatment, so 80% is the cost to the Indian doctor. Okay. Because अगर आप यहाँ पे 28,000 अपने स्पेंड किया, तो आप यही अगर आप सिंगापुर में कराते या यूएस में कराते, you would have spent 3 lakh rupees. Wow. Right. So you can, and the same material is being supplied to all the doctors around the world. So you can well imagine that India is still the cheap, very cheap. Another question that I can think of is कि ये भी हमने सुना है कि आप ज़्यादा टीथ वाइटनिंग मत कराओ, पॉलिशिंग मत कराओ, टूथ का जो एनामल होता है नेचुरल, वो डिप्लीट हो जाता है, दैट इज इररिप्लेसेबल. Whitening, I not really advise to all my patients. I only advise to those patients जिनको need है. Okay. Say suppose you are getting married, or you have some very important event which is coming at your place. Okay. तो वहाँ पे एक होता है ऑफिस वाइटनिंग, एक होता है होम वाइटनिंग. सो होम वाइटनिंग uses very less harsh chemicals. So probably you can use a home whitening kit, but it has to be supplied by your doctor itself. And you can use it probably 6 months. Okay. Say suppose you have a shoot, you can use your home whitening kit 30 minutes prior to your shoot, and you'll be happy. Okay, wow. Okay. And one, you are reducing the costs. Second, it is very safe. And third, you can do it probably 3 or 4 times in a year. So that will not add to the weakness of your teeth. Now coming on to the cleaning or the air polishers, if your dentist is using the best technology, they cannot be harmful to you at all. Okay, so no enamel is not being Not lost. at all. Not But at all. if the enamel is lost, which is lost, as you age also, can it be replaceable also artificially nowadays? The enamel is lost by aging in 3 ways, I'll say.
One is atresion. Atresion is the height of the teeth, it goes down. Okay. Second is abrasion. Abrasion is if you use a tooth powder or if you're using too much of toothpaste, you are abrading your teeth. You are reducing the thickness of your teeth. Third is erosion. Erosion is the people who have acidic regurgitation. Okay. So these three ways the enamel gets eroded or gets worn off. So one is the nature's own way of repairing. If the height of the teeth is going down, उसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक रिपेयर लेयर या एक नीचे डेंटीन की लेयर हर टूथ के अंदर ऑटोमेटिकली बनती है. दैट इज नोन एज रेपरेटिव डेंटीन. Okay. सेकेंड इज इफ यू आर अ लिटिल पर्टिकुलर कि मेरे टीथ फर्दर ना घिसें और उनको मेरे को एज इट इज स्टेटस मेंटेन करना है और रिपेयर करना है, देन प्रॉबली अ नाइट गार्ड इज अ मस्ट फॉर एनी वन एंड एवरी वन. Okay. नाइट गार्ड इज अ स्मॉल इनविजिबल अप्लायंस जैसे आपकी डॉटर के अलाइनर्स है, बट मच सॉफ्टर. यू शुड वेयर इट एट नाइट. एंड थर्ड, गेट अ फ्लोराइड ट्रीटमेंट डन फ्रॉम योर डॉक्टर प्रॉबली 4-5 months में. उससे एक फ्लोरो एपेटाइट लेयर बन जाती है ऑन द टॉप ऑफ द इनामल ऑफ द टीथ, Okay. विच विल प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन एंड विच विल मेंटेन द टीथ का और कंडीशन. ये भी मुझे बताइए कि गट हेल्थ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग एट आवर टीथ. गट हेल्थ, अगर आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, द पीपल in these cases, if your gut health is compromised and your dental health or gum health is fine, in these kind of cases, the patient will always have a odor from their mouth. Okay. Right? मतलब एक जो बैड ब्रेथ जिसे हम इंग्लिश में हेलिटोसिस कहते हैं, उसका फर्स्ट रीजन इज ओरल रीजंस दैट यू हैव प्रॉब्लम इन योर टीथ और द गम्स. सेकेंड इज यू हैव इन्फेक्शन इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और द गट हेल्थ. Okay. सो रेस्पिरेटरी या गट हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है तो भी पेशेंट को बैड ओडर होगा. तो अगर ये बैड ओडर जो है वो गट हेल्थ या रेस्पिरेटरी की वजह से आ रहा है तो ट्रीटमेंट वहाँ चाहिए. वहाँ चाहिए, या साथ में इन दीज काइंड ऑफ केसेस वी राइट प्रोबायोटिक्स. हाँ. ओके. आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट बी टेकिंग प्रोबायोटिक सेशे. एक आज की डेट में हर एक के लिए मस्ट है. ओके. पहले प्रोबायोटिक्स हम पिकल्स में हमें मिलता था, अच्छा. बट पिकल्स ऑफ लेटली बिकॉज ऑफ सॉल्ट, बिकॉज ऑफ ऑयल, Other things, सबका yeah. इंटेक कम हो गया. तो प्रोबायोटिक सेशे, देयर आर एन नंबर ऑफ गुड कंपनीज. आप सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टेक अ प्रोबायोटिक सेशे, दैट इज 1 or 2 grams of sachet, put in your mouth and have a sip of water, and you will find that your gut health is majorly improving. ओके. And second thing just to add is alkaline water. ओके. Alkaline water is which I love. In fact, there is a Japanese brand which is now in India, that is Kangen water, that is known as Miracle water. कल ही देखा मैंने ये कहीं. And there is a very beautiful book by the name of Regeneration Enzyme by Hiromi Shinya. He is a half American, half Japanese gastroenterologist. ओके. I'll appreciate, you must read it. In fact, I can send you a copy of that. ओके. So, Kangen water detoxifies your body. This water is known as anti-aging. वाओ. Right, so it is equivalent to 10 glasses of red wine, which company claims. Third, it removes the free radicals from your body. हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे को एजिंग में, डिजीजेस में हमारी बॉडी को आगे लेके जाते हैं. तो एल्कलीन वाटर इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड, ओके. एंड दैट इज़ गुड फॉर योर टीथ एज वेल. और ऐसा भी मैंने सुना है डॉक्टर से कि जब आपका बच्चा, लाइक आई हियर इट फॉर माय किड्स, कि जब दांत क्या कट 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 करते हैं नींद में, मीन्स वर्म्स हैं टमी में. ये मतलब मिथ्स चल रहे हैं. अच्छा, ये मिथ है. मिथ है, मतलब दिस इज नॉट कोई वो नहीं है, मतलब एंड टेस्टेड व्हाट राइट वो अबाउट नहीं है. ऐसा भी होता है दैट इफ योर गट हेल्थ इज नॉट वेरी गुड यू स्टार्ट गेटिंग टू मच प्लाक इन योर माउथ. नॉट रियली. Not really. तो ये बताइए कि as a dentist, when you look into people's mouths, do you somewhere like judge them? क्या मुझे सब पता चल रहा है, देखो क्या करा है इन्होंने, क्या खाया होगा, क्या अपनी हेल्थ के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया होगा. पहले तो सबके फेसेस देख के ही पता लग जाता है. मतलब ड्यूरिंग डेंटिस्ट्री ना हमारे को बेसिकली एक क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स एक होता है उसमें. Okay. There is a chapter of classification of patients. Okay. As soon as the patient walk into your room, today as I was walking to your studio, Did you do my classification no, also? no, like you were observing me, right? Okay. So similarly, we as doctors even have that observation power, that we observe anyone and everyone, that from his gait,
the way of wearing, the way he's walking. So all those things are the classification of the patients. Okay. So before we actually see you, our mind has to start working on you. Right? So ironically बहुत सारी findings हम एक patient को नहीं बताते. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल? Say suppose you have n number of dental issues. और आप मेरे पास एक पर्टिकुलर टूथ में पेन के लिए आए, तो आई विल बी ओनली स्पीकिंग टू यू फॉर दैट फाइंडिंग इट्सेल्फ. Why? बिकॉज दैट इज योर चीफ कंसर्न. सो वी वुड लाइक टू एड्रेस दैट फर्स्ट कंसर्न. ओके. We'll be jotting your findings, but will not be talking to you on day one. Why? Because Indian scenario में our patients are apprehensive. They feel that the doctor is just saying for the sake of it. Okay. Right? So you have to unwind with the patient a little slowly. Okay. So you have to first treat the first problem first, and then tell them gently that you even need this. So probably whenever you have the time, come back, or from wherever you need it, you can get it done. I think also there is a mentality in people, and I think I'm the same, कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं दे रही है तो उसको छेड़ना क्यों है? Deferment. राइट. तो आप मुझे बताइए एज अ डेंटिस्ट कि ऐसी कौन से एरियाज हैं आपके माउथ में जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है मुझे लेकिन दिख रहा है मुझे. व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड नॉट इग्नोर अबाउट माय डेंटल हेल्थ? First is bleeding from gums. ओके. How often should your gums bleed for you to actually Never address ever. it? Not Gum even should- once? No, not at Okay, all. okay. People have a wrong thought कि gums bleed किए because आज हमने ब्रश करते हुए जोर से ब्रश किया. Yeah, And because of that वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट ब्रश ले लेते. okay. Soft brush is a big no. Okay. I always recommend anyone and everyone medium hardnesses, and that too rotary brushes. Okay, The how battery about operated those one. electric ones? Electric ones. Okay. And that too take from the top-notch companies. You have to invest in your brush because Indian scenario में अगर एक ब्रश 4-5 हज़ार रुपए का है तो एक इंडियन माइंडसेट वो 4-5 हज़ार रुपए खर्चते हुए सोचता है. सो योर गम शुड नेवर ब्लीड बिकॉज डेंटल में अगर आपके 4-5 दांत हॉलो भी हो रहे हैं वो ट्रीट हो जाएंगे. बट अगर गम्स की प्रॉब्लम प्रोग्रेशन में आ गई या एग्रेसिव स्टेज पे आ गई, सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर दोज गम्स टू बी ट्रीटेड. वन. सेकेंड इज if you have any problem pertaining to your wisdom tooth, Okay. उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना. यूएस में या डेवलप कंट्रीज का एक प्रोटोकॉल है कि एट द एज ऑफ 18 ऑल द 4 विजडम टीथ आर रिमूव्ड बाय डिफॉल्ट. दे हैव टू बी टेकन आउट फॉर एनीवन एंड एवरीवन. ऐसा क्यों? Because nowadays our jaw size is decreasing, so wisdom teeth vertically upright मुंह में नहीं आ पाते. Okay. सो दे रिमेन इम्पैक्टेड, या तो टेढ़े रहेंगे या इम्पैक्टेड रहेंगे. वो एक साइट ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे. Okay. साइट ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट करने की वजह से वो बाकी की टीथ को डैमेज करेंगे. थर्ड, नोइंगली अननोइंगली विजडम टूथ के अराउंड चीक बाइट होती है. सो अगर एक पेशेंट को फ्रीक्वेंट चीक बाइट हो रही है और वो 18 साल से 30 साल की एज तक आ गया, उसको निगलेक्ट कर रहा है, तो दोज नॉन हीलिंग अल्सर्स can start getting converted to cancerous things. So कभी भी neglect नहीं करना. So these are 2 things which I say to all my patients कि don't neglect it ever. ठीक है भैया. आई होप यू गाइज मेड अ नोट ऑफ दैट. क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करनी है. वैसे मेरे हिसाब से कुछ भी नेग्लेक्ट मत करो. Absolutely. आई मीन कुछ है, दिख गया है, देन यू आर लकी दैट यू कॉट इट एंड यू शुड नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ डॉक्टर. अब ये बताइए कि यूएस जैसी कंट्रीज़ में डेंटल इंश्योरेंस इतनी मैंडेटरी क्यों होती है? जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं या कहीं पेपर वर्क देना है तो डेंटल इंश्योरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाई इज दैट? It is so because their treatments are expensive, damn expensive. So वहाँ पे अब इनफैक्ट यूएस में भी बहुत जगह डेंटल ट्रीटमेंट अब इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही. अच्छा. वाई? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज दे आर स्मार्टर देन अस. सो उनको जब इतने बड़े बिल्स दे हैव टू बेयर, सो बहुत जगह बहुत सारी कंपनीज या एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं कर रही जिसमें इम्प्लांट्स या जो एक्सपेंसिव इंटरवेंशंस है Okay. वो कवर्ड नहीं है. ओके. बट जो बेसिक प्रोसीजर्स है वो इन डेवलप नेशंस में कवर्ड है. बट आयरॉनिकली इन अवर कंट्री we don't have these insurances. I think in these cases also it is mandatory for you to visit your dentist every 6 months. Absolutely, If you don't do absolutely, it, आपकी इंश्योरेंस लैप्स हो कर जाएगी. जाएगी. You are right. राइट. Very well. अच्छा, रूट कनाल के बारे में मुझे ज़रा बताइए. आज भी लोगों को बहुत दहशत होती है सुन के, अगर डेंटिस्ट बोल दे कि भाई रूट कनाल कराना है तो बोलते हैं हमें जाना ही नहीं है.
बस वी विल जस्ट शव इट अंडर द कार्पेट. हाउ पेनफुल इज इट स्टिल एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि अगर आपको एडवाइस किया जा रहा है भाई कर लो तो करना चाहिए उसको इमीडिएटली? एज यू राइटली सेड कि डेंटल ट्रीटमेंट से 90% लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है. वन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रिक ऑफ द एनेस्थीसिया, हाँ. बिकॉज हर केस लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है. बट गॉन आर दोज डेज, द थिंग्स हैव completely evolved, completely. So if we talk about root canal, nowadays we have electronic anesthesias. Okay. Electronic are basically any drug is given by a special device जिससे एनेस्थीसिया इतना स्लो जाएगा कि पहली चीज़ आपको प्रिक का फील नहीं होगा. सेकेंड, आफ्टर एनेस्थीसिया बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी होती है बिकॉज हमारे एनेस्थीसिया में एड्रेनलिन होता है जिससे हार्ट रेट इंक्रीज होता है. ओके. तो जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉनिक एनेस्थीसिया देते हैं तो वन द प्रिक यू डोंट फील, सेकेंड दैट एंग्जाइटी और हार्ट रेट विल नॉट इंक्रीज. सो आपको जो एंग्जाइटी का जो एपिसोड आएगा वो नहीं होगा. तो इतना लोकलाइज्ड भी हार्ट को अफेक्ट करता है? 100%. ओके. बिकॉज आपका अगर हमने एक वायल में 1.8 ml ऑफ एनेस्थीसिया होता है, उसके अंदर एड्रेनलिन है विच इज समझ लो 10% ऑफ दैट. ओके. बट उतना एनेस्थीसिया, उतना एड्रेनलिन भी जब हमारी बॉडी में जाता है तो हार्ट रेट विल इंक्रीज. So it must be unsafe for heart patients? You have to take all those precautions. For any case and every case, you have to take precautions, prior history, prior clearances, and then only you should do any case. So now, with the advent of new technologies, single sitting root canals होते हैं. अच्छा. So the procedure will take roughly 40 minutes. Multiple X-rays, radiographs का खत्म हो गया concept. Then there are some special electromagnetic equipments जिससे रूट कैनाल की प्रिडिक्टेबिलिटी इतनी ब्यूटिफुली 100% श्योर है कि वो करवाना, मतलब 40 मिनट्स का एक जो प्रोसेस है, वन शॉट ऑफ एनेस्थीसिया एंड योर प्रोसेस इज डन. एंड आई ऑफन से टू माई पेशेंट्स दैट यू विल एंजॉय द ट्रीटमेंट. ओके. एंड वंस दे गेट द ट्रीटमेंट डन, सो उनको मैं ज़रूर बोलता हूँ कि वेदर यू एंजॉयड इट और यू डिडंट एंजॉयड इट. So our tagline is that I am enjoying it. Okay. And so gone are those days जहाँ पे patients were really under that kind of a mental or physical trauma for any treatment. बट अगर किसी को किसी टूथ में रूट कनाल बताया गया है तो वो निकलवा ही दो अगर टूथ, तो क्या होता है? नहीं, because we were talking about that the lifespan of the individual is increasing, so you have to maintain these teeth till the last day of the life. So, बहुत सारे लोग टूथ एक्सट्रैक्शन आल्सो अफेक्ट्स द लाइफ स्पैन, इज इट? नो. से सपोज आपने 2 मोलर्स निकलवा दिए. हाँ. तो 2 मोलर्स आपने निकलवा दिया, अब आपको उसकी जगह ईदर यू लिव विद दैट काइंड ऑफ अ कंडीशन और यू नीड अ रिप्लेसमेंट. सो इफ यू नीड अ रिप्लेसमेंट देन प्रोबेबली यू हैव टू गो फॉर अ प्रोसीजर ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स. सो डेंटल इम्प्लांट, आपने 2 आर्टिफिशियल डेंटल इम्प्लांट्स लगवाए. वन, यू आर बेयरिंग दैट कॉस्ट. सेकेंड, डेंटल इम्प्लांट विल ऑलवेज रिमेन आर्टिफिशियल. So if we say a tooth is a better or a dental implant, I'll always say your natural tooth is much better than a dental implant. So why you want to lose your natural tooth and get an artificial one? So you should always try your best to save your tooth. Absolutely. Now, coming to a lot of these aesthetic treatments which are happening in dentistry, do you think कि लोग अपने दांतों को बस अब्यूज़ कर रहे हैं ये सोच के कि ठीक है ना मैं वाइटनिंग करा लूँगा, या दे आर यूजिंग टबैको और स्मोकिंग टू मच और चूइंग टबैको सोच के कि ठीक है आई कैन अफोर्ड इट, आई जस्ट गेट दैट डन, या अगर ख़राब हो रहा है दांत, कैविटी है, ठीक है निकलवा दूंगा, इम्प्लांट्स लगवा दूंगा. डू यू थिंक टू अ सर्टन एक्सटेंट ये जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं परफेक्ट दांत हैं किसी के और ये ट्रीटमेंट से ऐसा मैजिक हो गया, पीपल आर एक्चुअली अब्यूजिंग दिस साइंस एज वेल? Absolutely. व्हाट डू यू हैव टू से टू सच पीपल? I always say natural is natural. And we had one of the top-notch dentists जिनको हम father of prosthodontics भी कहते हैं. He was M.M. Devan. उनकी एक बहुत अच्छी saying है, it is important to preserve what already exists than to replace what is missing. So it is our duty that we have to maintain each and every part of our body, including our teeth. हमें ओवर जीलस होकर उन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में नहीं जाना चाहिए. एसिमेट्री इज द लॉ ऑफ नेचर. जो भी चीज़ 100% सिमेट्रिकल होगी दैट विल लुक लाइक प्लास्टिक और आर्टिफिशियल. करेक्ट. सो ह्यूमन बीइंग्स अगर हम अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो राइट एंड लेफ्ट पार्ट कभी भी 100% सुपर इम्पोज नहीं होगा.
सो एसिमेट्री हमेशा ब्यूटी को ऐड करती है. तो बहुत सारे यंग बच्चे, बहुत सारे करंट टाइम्स में बिकॉज ऑफ नेट दे कम टू मी कि डॉक्टर मोदी मेरे को परफेक्ट स्माइल चाहिए. एंड समटाइम आई फील दैट दे आर ऑलरेडी परफेक्ट, राइट? सो व्हाई डू दे वांट टू गो फॉर दोज ट्रीटमेंट्स विच दे डोंट नीड इट? So probably this is always my advice to all of the patients who are coming to me, and through your podcast itself, I always would like to say that maintain your natural thing in the natural way, because आपने देखा कि आपके जो parents हैं, they have lived a healthier and a longer life than the current times. Correct. So stick to the normal things and So you'll do you, be do very you happy. ever find yourself actually counseling somebody who's coming and asking you to do a treatment which is not required? Every day. Every day I have to say no to around 30% of the patients who come to us. And okay, let's also, before we end the session, talk about what is the advancement that AI is making in the field of dentistry. AI is progressing into, rather seeping into the dentistry as well. In fact, AI is like, one is in the field of root canals. There is a device which has come in, which will be completely computerized with no human intervention. So automatically there will be a robotic root canal. Oh, So you have to just place the device and automatically that will be done by that device itself. my God, but that sounds very scary. आपको दर्द हो रही है तो आप ऐसा finger नहीं raise कर सकते. Like when I am sitting in my dentist chair, he says, just raise your finger if anything, and I'll stop. I always say that man behind the machine makes a difference. Yeah. So machines are important, technology important है, बट जो उसके पीछे जो उसको चलाने वाला है, जो एक आपको ह्यूमन बीइंग को एक ब्रेन दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया था कि एक राइट और रॉन्ग को डिफाइन करने के लिए, एक जज करने के लिए. सो दैट अगर आप हम हर चीज़ को टेक्नोलॉजी बेस कर देंगे जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाएगा तो बैकफायर करेगा. जी. बट AI एज द वर्ल्ड इज इनकॉपरेटिंग, हमें भी इनकॉपरेट करना चाहिए. एट अवर क्लिनिक हमने जैसे अपने टेलीफोन कॉल्स को AI बेस कर दिया, एंड सिमिलरली वी आर वर्किंग ऑन वन, we are in the stages of that. Say suppose if I am not there, that there will be a virtual Dr. Modi in the clinic. Really? Yes. But that virtual Dr. Modi will not counsel us if we go and That ask will him. at least that will at least create that kind of a discipline in the clinic. So but for the counseling, definitely I am there. थैंक यू. Yeah, डराओ मत ऐसे आप. अभी कल व्हेन आई वाज कमिंग टू दिल्ली एट द एयरपोर्ट, Right. बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हाँ जी. एंड आई वेंट टू द सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर, एंड आई एम टेलिंग यू देयर आर कियोस्क्स टू डू दीज थिंग्स, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, बट नथिंग वाज फंक्शनिंग विदाउट अ ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग ओवर देयर. Absolutely, किसी को ना तो समझ में आ रहा था, ना ही मशीन ढंग से काम कर रही थी. ऐसा अगर आप डेंटिस्ट चेयर में बैठे हो और AI आपको कुछ कर रहा है, रोबोटिक से कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो जाए. मैम हर चीज़ का एक प्रोसेस है, आई बिलीव. हम एज अ कंट्री अगर हम बात करते हैं, अभी भी हम लोग बाकी वर्ल्ड से काफ़ी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. तो वो सब चीज़ें हम अपने होते हुए देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, दैट टाइम विल टेल. बट प्रॉबली वी हैव टू गो विद द वर्ल्ड. अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, वी गॉट इंडिपेंडेंस एट द ऑलमोस्ट द सेम टाइम, बट दे आर ऑलमोस्ट 50 years ahead of us. सो हमें भी उस थॉट प्रोसेस के साथ आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा. Now, my last and final question to you is, Doctor, at what point in your profession, in your career, did you realize that dentistry is much more than just teeth? In fact, this realization was, I made it at my time of education itself, when I was in a dental school, because we had very dedicated teachers. So our anatomist was anatomist of the country who has taught us human anatomy, Okay. and his name was Dr. Mukherjee. He is no more, and he was the emeritus professor, the people who cannot retire for his life. So when we entered a dental school, the first year we are taught human anatomy. So as a dentist, or to the people who are graduating in dentistry, they are only taught head and neck. They are not taught the whole body. But Dr. Mukherjee taught us the whole body. So we were supposed to do the dissections on the whole body. And he taught us on day one that you are not treating this particular area of the body.
you are going to treat the whole body itself. So probably those times were the times when that complete totality of education was there. So on day one itself, we were realized that you are not only learning dentistry, but you're learning a complete medical science. And that was a very strong and a very good foundation. And I always remember these old teachers of ours who were really dedicated, sincere, and they have put everything for us. And we owe everything to them. So, and that was the reason I was in teaching for almost 25 years. So, and I love that the next generation of kids who are coming, in fact, my son will be joining us in next 1 year. Okay. He's doing his post-graduation. So I talk to them that whenever, whatever you're doing, do it with the hardest energy, sincerity, honesty, and deliverance. And you mark my words that sky is the limit, and you'll be able to get everything. And ultimately, it is your honesty and deliverance. It is the philosophy of Gita, karma. So अगर आप कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा. So this is I believe in. Absolutely, well said. Thank you so much, doctor, for Thank sharing you. so much information with me. Thank you. And मुझे पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गुजर गया. इतनी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, जानने को मिली. एंड फॉर माय ऑडियंस ऑल्सो जस्ट वांट टू लीव यू विद द थॉट कि आज तक हमने यही सोचा है कि भाई डेंटिस्ट के पास तब जाना होता है जब दांत में दर्द है. एंड जस्ट लाइक डॉक्टर राइटली सेड कि हम अपनी कार की सर्विस बहुत ध्यान से करवाते हैं. हम डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं, ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम डेंटिस्ट को इग्नोर कर देते हैं, अपने दांतों को इग्नोर कर देते हैं. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा पेन लाइफ में वही होता है जब दांत का दर्द होता है, जब आप खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो, सो नहीं सकते हो, सांस लेने में प्रॉब्लम है, सारा टाइम इरिटेशन होती है. एंड आई थिंक टू रीच दैट पॉइंट व्हेन यू एक्चुअली हैव अ टूथ एक takes a while if you keep, it happens only if you keep neglecting your health. And that's what I want to tell you कि ये भी एक important aspect है हमारी life का. In fact, it's one of the most important aspects of our life. Let's not neglect it. Let's not ignore it. Please take your dental health seriously. Take your dental hygiene seriously. I hope this conversation made sense to you, as much sense to you as much it made to me. Thank you. Thank you, doctor, for Thank you, doing ma'am. that with Thank us. you. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज आपको नहीं पता है कौन सा फ्रेंड आपका दांत में दर्द को इग्नोर कर रहा है. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. यू आर वॉचिंग कैंडिड कन्फेशंस विच अवी. दिस इज बोथ ऑफ अस साइनिंग आउट. Thank लव you. एंड पीस फ्रॉम us to you.